بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 3 انتہائی اہم سٹوریز ہیں، بمباسٹک قسم کے سٹوریز ہیں، بریکنگ نیوز پر مشتمل سٹوریز ہیں، اندر کی خبروں پر مشتمل سٹوریز ہیں۔ جی ہاں، پہلی سٹوری ڈسکا کا ذرائع بتا رہے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہونا کیا ہے وہاں پر، وہ جو سارا پورے کا پورا ڈسکا چھا گیا، ڈسکا پہ دھند چھا گئی اور ڈسکا پورے پاکستان کے الیکشن پہ چھا گیا، بائی الیکشنز پر، اس میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، یہ ڈسکس کرنا ہے۔ دوسرا یہ ڈسکس کرنا ہے جناب کہ کنٹرول ٹاور اب تک جتنی بھی کاروائی ہو چکی، کنٹرول ٹاور غیر جانبدار ہے، نیوٹرل ہے، یہ پی ڈی ایم کے بہت ہی اہم رہنما نے کہا ہے۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں جناب۔ اور جناب تیسری بہت ہی اہم سٹوری ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کب تبدیل ہو رہے ہیں، یہ بتا دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ جی ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ڈسکا کا فیصلہ کہہ رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں جناب ہو چکا ہے۔ 3 رکنی ٹیم بنی جس میں ایک صوبائی الیکشن کمشنر صاحب ہیں، اسرار صاحب، غالباً ان کا نام یہی رپورٹڈ لی، اور اس کے بعد ڈائریکٹر ہیں عباس بخاری صاحب، جوائنٹ سیکرٹری ہیں سعید گل صاحب۔ انہوں نے رپورٹ مرتب کی۔ انہوں نے رپورٹ منگوائی تھی ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر سے، انہوں نے بھی وہی کہا کہ جناب کہ ہمیں اطلاع دی گئی، اس کو صوبائی جو الیکشن کمشنر ہیں ان کو اطلاع دی گئی کوئی 2:30 بجے رات کے کہ جی اس طریقے سے پورا عملہ ہی غائب ہو گیا، کوئی 20 پولنگ سٹیشنز کا۔ پھر اس کے بعد جناب انہوں نے وہاں سے وہی والی رپورٹ، پھر جب 6 بجے صبح آیا عملہ، تو پھر جو فارم 45 اور باقی جو رزلٹ لے آیا تو وہ رزلٹ ٹیمپرڈ تھا، یعنی رزلٹ میں رد و بدل تھی۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے جناب ہم جیت چکے ہیں، حالات تو یہ ہیں ہم جیت چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ رزلٹ میں تبدیلی کی ہوئی تھی، یعنی تبدیلی کروائی، پھر وہ کہتے ہیں ہم جیت چکے ہیں۔ اور جناب نون لیگ کا ہے کہ دوبارہ الیکشن پورا کروایا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اناؤنس کر دو ہم جیت چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں دوبارہ الیکشن کروایا۔ اب کیا ہونا ہے، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے جناب۔ فیصلہ کیا ہوا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، اب باقی دیکھیں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہی جو 23 پولنگ سٹیشنز ڈسپیوٹڈ ہیں نا، وہی جو 23 پولنگ سٹیشنز ہیں جن پہ تنازع ہے، وہ ان کا الیکشن دوبارہ ہوگا، ری پولنگ ہوگی، دوبارہ پولنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ڈی پی او اور ڈی سی او کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے اسلام آباد میں، اور ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ کاروائی ہو ڈی پی او اور ڈی سی او کے، کیونکہ یہ جو اس طریقے سے، اچھا کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرانزک کروانے میں اس کے کچھ تاخیر ہوگی، تو سامان وقت پر ریٹرننگ آفیسر کے آفس کو کیوں نہیں پہنچایا گیا، یہ بھی رپورٹ کا حصہ ہے اس کا۔ اچھا، اسی طریقے سے نا اب آپ کو میں بتاؤں کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا جو کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، پورا ووٹوں کا بھرا ہوا، پرچیوں کا بھرا ہوا تھیلا لے کے جاتے ہوئے، اور وہ اس کی ویڈیو بھی مریم نواز صاحبہ نے وہی الیکشن والے دن یعنی 19 فروری کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دی تھی۔ اور اس وقت جناب اس کو پوچھ رہے تھے یہ آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ آپ کدھر، یہ آپ نہیں لے کے جا سکتے، اور یہ کدھر۔ اب ان کا ایک بیان آیا ہے جناب، انہوں نے اپنے آپ کو لیاقت علی بھٹا صاحب بتایا ہے، اور یہ تھیلا ڈسکا پہ نہیں، یہ تھیلا جو لے کے وہ جا رہے تھے، یہ تھیلا لے کے جا رہے تھے جناب وزیر آباد میں، وہ جو چھوٹا الیکشن تھا صوبائی کا، مطلب ادھر بھی انہوں نے پوری ہاتھ پیر مارے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون والوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جاگے ہیں جس طریقے سے، یہ میں آپ کو نا بہت ساری ان تینوں سٹوریز میں بہت ہی اندر کی باتیں بتانی ہیں، تو جناب وہ جاگے ہیں جس طریقے سے بھی انہوں نے پہرا دیا ہے، جیسے مریم نواز صاحبہ نے ان کو اپنی لیڈر نے کہا کہ بھائی آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے، تو وہ ووٹ پہ اسی طرح سے پہرا بھی دے رہے تھے۔ اب وہ لیاقت علی بھٹا صاحب کا لیٹسٹ ایک سٹیٹمنٹ آیا، اس سٹیٹمنٹ سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ اس طرح سے بندے آئے، مجھے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے، مجھے کہا کہ ساتھ چلو، وہ مجھے سڑکوں پہ گھماتے رہے، اور مجھے
उस वीडियो में जिसमें वो बयान दे रहा है ना, पीछे को लुकमा दे रहा है। वो वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। पीछे को लुकमे दे रहा है कि आप कहें कि जी सड़कों पे घुमाते रहे, तो वो सड़कों पे उन्होंने आगे सड़कों पे कह दिया। आप कहें कि मैं यहाँ का प्रेजाइडिंग ऑफिसर था, तो उन्होंने वही कह दिया। तो पता नहीं कहाँ का था और कैसा थैला वो लेके जा रहा था। कोई जाली पुलिस वाले आ रहे हैं, उसकी भी वीडियो वायरल हुई है। तो वो पीछे से बंदा उसको लुकमे दे रहा है कि जी आपने ये करना है, वो करना है। तो अब जराए ये बता रहे हैं इस सारी चीजों का जो लुबे लुबाब है, जो सारी चीज़ों का जो जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से वो फैसला होना है, लेकिन कह रहे हैं कि यही हुआ है फैसला कि जो 23 पोलिंग स्टेशंस हैं उनका रीपोलिंग होगा, उनका इलेक्शन दोबारा होगा। आ जाए जनाब दूसरी खबर पर। खबरें बड़ी अहम हैं जनाब। कह रहे हैं कि जनाब कंट्रोल टावर अब तक जितनी भी कार्रवाई हो चुकी, कंट्रोल टावर मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये कंट्रोल टावर ने खुद नहीं कहा, ये हुकूमत ने नहीं कहा, ये जनाब पीडीएम के अहम रहनुमा सेंटर से जी हाँ, सेंटर से सेनेटर के नामजद, पीडीएम के नामजद उम्मीदवार जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स स्पीकर नेशनल असेंबली यूसुफ रजा गिलानी साहब ने यह कहा है कि कंट्रोल टावर गैर जानबदार है। और अल्लाह करे ऐसे ही हो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना मैं आपको बड़ी मजे की बात, मैंने कहा कि ये कंट्रोल टावर अगर गैर जानबदार है, ठीक है, तो अब एक कुछ जराए बता रहे थे कि जनाब ये जो कुरम वाली सीट उधर कंट्रोल टावर ने कार्रवाई डाली, ये जो पंजाब वाली हैं ये कार्रवाई कह रहे हैं कि कंट्रोल टावर की बिल्कुल नहीं है, ये कोई स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई है। ये मैंने कहा स्पेशल ब्रांच कि हाँ जी उस्मान बुज़दार साहब की, मैंने कहा इसी वजह से तो कार्रवाई ही ऐसी डाली है भोंडी कि फौरन ही पकड़े गए ठीक है ना। अच्छा, तो फिर उसमें मुबैना तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब उसमें बता रहे हैं कि कुरम में जो है ना इस तरीके से हुआ है। तो मैंने कहा फिर कोई न्यूट्रल कैसा हुआ कि अगर बिल फर्ज कुरम में उन्होंने इस तरह के, उन्होंने कहा नहीं वो है न्यूट्रल। अब हम आपको इसके अंदर की स्टोरी बताते हैं कि वो कैसे, ये कुरम वाली कार्रवाई की मैं आपको अंदर की स्टोरी बताता हूँ कि मामला क्या चला है। जो फखर जमान साहब हैं ये कौन है और किस तरीके से जीते हैं। अच्छा, तो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है कि मैं जनाब पीडीएम का भी मशकूर हूं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जनाब एक बहुत ही, चूंकि आज उन्होंने मौलाना साहब से यानी पीडीएम के सरबराह से मुलाकात की है, मौलाना साहब से। अब वो फर्दर मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी शहबाज शरीफ साहब से जेल में भी अभी मुलाकात होनी है। अच्छा, फिर अभी लेकिन आज की उन्होंने जो मौलाना साहब से मीटिंग हुई और मौलाना साहब की मीटिंग के बाद जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और मौलाना साहब ने एक साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बहुत ही अहम बात की। तो जहांगीर तरीन साहब से मुतल्लिक उन्होंने कहा मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, ना राब्ता हुआ, लेकिन बड़ी ही अहम बात की। उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब मेरे अजीज़ हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी बात है भाई, ठीक है ना। ये पॉइंट टू बी नोटेड, डॉट्स आपने मिलाने हैं। मैंने और आपके साथ बड़ी अहम खबरें आज शेयर करनी है, मैंने बहुत अहम बातें आज शेयर। उन्होंने कहा कि ये जो है ना यूसुफ रजा गिलानी साहब अपना जहांगीर तरीन साहब मेरे अजीज़ हैं, ज़ाहिर उनके रिश्तेदार हैं, तो वो कहते हैं कि उनको राब्ता या फ़ोन नहीं रखे, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मौलाना साहब ने भी बड़ी अहम बात कर दी, मौलाना साहब ने भी बहुत आगे की बात की है। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी हमारा एजाज़ है, और अगर ये कामयाब होते हैं तो हमारा एजाज़ है। और वो सेनेट में भी, और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं, और अगर ये अब चेयरमैन सेनेट बनते हैं, अब ये पॉइंट टू बी नोटेड, बस मैं इतना कहूँगा, चेयरमैन सेनेट बनते हैं तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो खैर बहुत अच्छी। तो अब जनाब आ जाइए उस बात पे कि मैंने पूछा कि यार ये क्या है कि आप कह रहे हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स ने मुझे बताया, और ये क्या है कि आप कह रहे हैं कि कंट्रोल टावर ने वहां फखर जमान साहब को जितवा दिया और पीटीआई के फखर जमान साहब को, और तो फिर आप कहते हैं कंट्रोल टावर न्यूट्रल भी। उन्होंने कहा वो वाली बात नहीं है, वो पीटीआई की वजह से नहीं जीते। मैंने कहा हैं हाँ, वो तो पीटीआई से तो कह रहे थे कि एक दिन पहले जो है ना शामिल हुए, वो तो सीट ही आपको पता है मुनीर और अगजाई साहब की थी, मौलाना साहब के बंदे थे, वो बहुत ही तगड़े उम्मीदवार, और फिर वो कहते हैं उनकी वजह से नहीं जीते पीटीआई में, तो ये एक दिन पहले शामिल हुए और इनको टिकट मिल गया। तो कह रहे हैं कि फखर जमान साहब के एक भाई हैं जो कंट्रोल टावर में बहुत ही
आला ओहदे पर हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे खैर उनका नाम भी पता है, उनका जो कंट्रोल है, लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा, ठीक है ना। वो उसका तकाजा यही है जर्नलिस्टिक एथिक्स का कि आप उनका नाम ना बताएं। तो कहते हैं कि वो उनकी वजह से जीते होंगे। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ वो उनकी वजह से जीते होंगे, ये 9 भाई हैं, फखर जमान साहब उनकी वजह से। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा यार अगर पीटीआई की वजह से नहीं जीते कंट्रोल टावर भी, वो उस हिसाब से न्यूट्रल है पॉलिटिक्स में, और ये तो चलो कि कोई होगा कि रिश्ता। उन्होंने कहा जी ये अभी कोई थोड़े से कोई एक आध बैग खुला, तो फिर उसके बाद जब जाली वोट निकलने शुरू हुए तो दोबारा ही वो जो है ना उसकी रिकाउंटिंग बंद हो गई। ये कुरम की बात हो रही है। तो वो असल में बात ये हो रही थी, वो कहने लगे साहब ये एक जगह से भी नहीं जीते। तो मैंने कहा यार ये कुरम से तो जीते हैं। कहते हैं कुरम की और कहानी है, आपको मैं बताता हूँ। कुरम की वो कहानी है कि अभी रिकाउंटिंग शुरू हुई तो जाली वोट निकलने शुरू हुए, तो जैसे ही जाली शुरू हुए तो फिर उन्होंने फिर बंद कर दिया। तो फिर वो मामला बांध ही रहेगा, हो सकता है ये सेनेट के इलेक्शन तक तो बांध ही है ना, फिर उसके बाद कोई खुले तो खुले। अच्छा, मैंने कहा तो ये मामला है जनाब, ये है, ये सारा सिलसिला है। और फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा सिलसिला है तो फिर तो वो पाबंद थोड़ी होगा कि अगर उसको किसी और ने जितवाया है तो फिर वो पाबंद थोड़ी होगा को पीटीआई को जो है ना वोट दे। ये भी बड़ी बात, अंदर की खबर है, अंदर की जनाब, अंदर की बात है। चलिए आगे चलते हैं। आज है जनाब डीजीआई एसपीआर साहब जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज एक बयान दिया है। खैर वैसे उनकी मीडिया टॉक थी और उन्होंने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब, इस पे मैंने भी वीडियो की थी, ठीक है। और सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब ये अफवाहें गर्म हैं कि डीजीआई एसपीआर जनरल फैज़ हमीद साहब तब्दील हो रहे हैं, और ये भी कुछ अफवाहों में ये भी सुना जा रहा है कि उनकी जगह पे जनरल आसिफ गफूर साहब को लाया जा रहा है, और ये भी कि उनसे मुतल्लिक भी अफवाहें इस तरह से गर्म हैं। तो इसके बारे में तो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा है सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कि ये जो सोशल मीडिया पे ये सारी हैं ये बेबुनियाद क्या सराइयाँ हैं। अच्छा सुनिएगा, मैंने इससे एक नुक्ता बड़ा अहम डिराइव किया है। बेबुनियाद क्या सराइयाँ हैं, ये सब झूठ है, सच नहीं है। फौज में तैनाती इतनी कम मुद्दत के लिए नहीं होती तैनातियाँ, हर कोई अपनी मुद्दत पूरी करता है, और आम तौर पर किसी इदारे के सरबराह के तौर पर उसकी जो मुद्दत होती है वो 2 साल तक होती है, ठीक है, 2 साल तक। यानी कि अब इससे बयान हो गया, चले बिल्कुल मान लिया जनाब वो क्या सराइयाँ हैं वो झूठ, क्योंकि ज़ाहिर है जब फौज का तर्जमान कह रहा है तो वो डेफिनेटली वही होगा जो उनको ज़्यादा मालूम है। लेकिन इससे मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक अखज़ की है, और वो नुक्ता डिराइव ये किया है, अखज़ ये किया है। फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो बात की है ना कि जनरल साहब ने कि कम अज़ कम भी जो है ना जो होती हैं तो 2 साल तक के लिए होती हैं, वो जो तैनाती होती है किसी भी इदारे के सरबराह की फ़ौज में, तो वो कम अज़ कम 2 साल की मुद्दत, पूरी 2 साल तक। मैंने कहा कि जनरल फैज़ साहब फिर आए कब थे? जब मैंने देखा तो वो आए थे जनाब कोई मिड जून, 16 जून था गालिबन, 16 जून 2019 को। तो उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं 16 जून 2021 को। तो अब भी तो 2-3 माह ही रह गए हैं ना, ठीक है। अब आप डांट खुद मिलाते रहें, डांट मिलाते रहें, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि जब भी कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट का क्रक्स और स्टेटमेंट, वो कहते हैं ना हर बात की तह में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। बिटवीन द लाइंस जो है ना आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको कोई बोले तो उससे बिटवीन द लाइंस मकसद निकालना आना चाहिए, और उसका बहुत गहरा मकसद होता है, और वही सारा मकसद होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।